Right? Okay. So in the last class, we discussed about the SP overlap and SS overlap, right, of molecular orbital theory, है ना. So वहाँ पे हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लिया था, राइट ना. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द पीपी का भी ओवरलैप हो गया था अपना. पीपी के अंदर भी वी सॉ अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग. और उसके अंदर कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, वी सॉ ऑल ऑफ दैट, राइट. नाउ इट्स टर्न अबाउट द पीपी ओवरलैप. पीपी के अंदर ही बट यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा या इन जनरल पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, ठीक है. that this is the second case of PP overlapping. So you can say it's nothing but parallel overlap या parallel bonds बन रहे हैं, ठीक है. तो this is nothing but the parallel bonding बन रहा है. तो parallel bond में क्या होगा अक्षरा? There are two cases. The first one is again the constructive interference and the second one is again the destructive interference, right now? Yes, sir. And the second one over here is destructive interference. So tell me what you remember from last class discussion. What do you mean by constructive interference? Any one of you? Same phase. Same phase. And what are the properties of constructive interference? I told you the three properties of constructive interference. Low energy, attraction, bonding. Very good. So in the constructive interference, the energy is low, okay, and there is the attraction between the electron cloud, or you can say the waves of the electron. And the third part is that these constructive interference is also called as the bonding molecular orbitals, or you can even say that this constructive interference is responsible for making the bonds, right? And in other words, the destructive interference is against the bond or it is anti-bond. So you can call it anti-bonding molecular orbital. And there are two more properties related to it. That is, there is the repulsion between the electron waves, and the second property is that the energy of the destructive interference waves is higher than the atomic orbitals, right? So constructive interference के अंदर PP हम पैरेलल बॉन्ड देखने वाले हैं. याद रखो PP के अंदर क्या हो सकता है, पैरेलल. हाउ डू द पैरेलल बॉन्ड्स डू फॉर्म अक्षरा? सबसे पहले दिस इज माय P का ऑर्बिटल, राइट ना. Again this is the P orbital. So what is going to happen over here? The shape of the P subshell is double shape, right? तो constructive interference होगा, that means these will be in the same phase, positive positive and negative negative, right? तो क्या होगा, these are the nucleus between them, right ना, है ना बोलो. Yes, sir. तो दो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? Attraction. Attraction. And if you see the destructive interference के बीच में क्या होगा अक्षरा? Repulsion. Repulsion. So what's going to happen after some time? See, the shape will look something like this, huh? So this is the first nucleus, this is the second nucleus. ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. पॉजिटिव पॉजिटिव फेज बन रहा है. सो दिस इज माय पॉजिटिव पॉजिटिव फेज, समथिंग लाइक दिस, ओके. आफ्टर द अट्रैक्शन, right now. So this phase you can call it as the positive phase, and this phase over here you can also call it as the negative phase of the wave. Now tell me, how many nodal planes are there, Akshara? 0. One. So there is one nodal plane, no? याद रखो. What's going to happen, ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि ये न्यूक्लियस से इन जनरल हल्का सा यहाँ से प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट होने की, ठीक है. सो देर इज़ वन नोडल प्लेन between the electrons, right? Between the nucleuses. So this is how we talk about Yes, the sir. nodal plane. And if I have to talk about the destructive interference, so destructive interference में क्या होगा अक्षरा? What do you think will happen? It is the same scenario like this. So this one is my positive phase of P subshell and negative, and it combines with the opposite phase. तो opposite phase में क्या होगा? इसका उल्टा, right ना? Negative, and this is positive phase. So after some time what's going to happen? बोलो. रिपल्शन होगा ना. रिपल्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्शन? रिपल्शन मतलब ये पॉजिटिव फेज इधर भागेगा, ये नेगेटिव फेज इधर भागेगा, और ये वाला नेगेटिव फेज इधर भागेगा, एंड ये वाला पॉजिटिव फेज भी इधर भागेगा, राइट. सो बेसिकली ये टूट जाएंगे, जैसे फूल के पत्ते निकल के गिरते हैं ना, लाइक द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. तुम प्लग करते हो तो कैसे निकलेंगे? सेम सिमिलरली ऐसे ही निकल के गिर जाएंगे. सो दिस इज माई एक्स एक्सिस का नोडल प्लेन एंड दिस इज माई वाई एक्सिस का नोडल प्लेन, ठीक है. व्हाट्स गोइंग टू हैपन? दिस आर गोइंग टू बी स्प्रेड लाइक दिस. Can you visualize it now?
सो जो पॉजिटिव फेज था ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव फेज नेगेटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव फेज ये नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा, राइट। सो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज नथिंग बट PP पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड, राइट। और डिस्ट्रक्टिव में हम क्या बोलेंगे, पाई स्टार बॉन्ड, राइट। So this was all about the sigma bond and pi bond. So let me just give a brief introduction about what are G-rayed and un-G-rayed orbitals. अच्छा मुझे एक बात बताओ अक्षरा, यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है? How many nodal planes are there, Soumya? Two. Two ना? Okay. Yes, sir. तो अगर nodal plane का वैल्यू 2 हो गया और यहाँ पे nodal plane का वैल्यू 1 हो गया, so I've told you something about G-rayed and un-G-rayed orbitals. You remember that? Yes, sir. What are G-rayed and un-G-rayed orbitals? Even numbers are G-rayed and odd numbers are un-G-rayed. Right. So even numbers are G-rayed and odd numbers are un-G-rayed. So G-rayed un-G-rayed क्या होता है, चेक करो। G-rayed un-G-rayed just represents the symmetry, that's it, ठीक है। What do you mean by symmetry? हम क्या करेंगे, we will just keep the focus on the centers of the nucleus. So nucleus के center पे अपना focus रहेगा। So I have to talk about one more thing. SS overlap की मैं बात कर रहा हूँ। SS overlap में क्या होगा अक्षरा, if this is the positive phase and this is also the positive phase, what's going to happen, Soumya? Constructive interference इन दोनों के बीच में attraction आएगा and after some time the orbitals will look like this, है ना, दोनों के न्यूक्लियस से। तो दिस इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर से हल्का सा आएगा। अच्छा ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं ना इसके अंदर, सो लेट इट बी। सो पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे नोडल प्लेन्स आर जीरो, दैट्स वाई वी कॉल्ड देम एज G-rayed ऑर्बिटल्स, राइट। On the other hand, if I talk about the un-G-rayed orbitals, let's say this is the positive phase, this is the negative phase, इन दोनों के बीच में क्या होगा, repulsion. After repulsion, something the scenario is going to look like this. Orbital के left में न्यूक्लियस के लेफ्ट में चला जाएगा और ये भी जो ऑर्बिटल है ये भी इसके न्यूक्लियस के राइट में चला जाएगा। सो दिस इज द पॉजिटिव फेज, दिस इज द नेगेटिव फेज। अब G-rayed की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, G-rayed का बात ये है कि यू रोटेट, यू डू वन थिंग, तुम दो न्यूक्लियस का एक पोर्शन पकड़ो, इसके बीच से मिड पॉइंट या एक मिडल लाइन ड्रॉ करो और इसको तुम रोटेट करने की कोशिश करो, इस पूरे ऑर्बिटल को, ठीक है। जब तुम रोटेट करोगे, आफ्टर द रोटेशन द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल विल बी एग्जैक्टली सिमिलर लाइक द प्रीवियस वन, समझ रहे हो। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू सी द पोर्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इटसेल्फ, समझ रहे हो। तो सिमेट्री का देखने के लिए हम क्या देखेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सी द पोर्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। सो अक्षरा मेरे को बात बताओ, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं उसको घुमाता भी हूँ तो क्या होगा, ये जो A इधर है, मान के चलो B न्यूक्लियस इधर है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन अक्षरा, अगर मैं रोटेट करूँगा तो बोलो, इधर A की जगह B आ जाएगा और इधर B की जगह में A आ जाएगा, राइट ना। बट स्टिल द होल स्टोरी इज गोना बी द सेम। तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पूरा का पूरा फिलअप किया होगा, राइट। सो कैन आई से दैट कि ये दोनों भी ऑर्बिटल दिखने में डिट्टो सेम लग रहे हैं। देखो, जब भी मैं सेम लग रहे हैं देखने के लिए बोल रहा हूँ ना, माई ओनली फोकस इज दिस एरिया। इस एरिया के बीच में क्या सब दोनों सेम लग रहे हैं, है ना। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का एरिया पकड़ूंगा और ये यहाँ पे न्यूक्लियस का एरिया पकड़ूंगा और चेक करूँगा इन दोनों के बीच का रीजन क्या है, ठीक है। अक्षरा, ये पूरा का पूरा लोब कौन सा है, पॉजिटिव लोब, राइट ना। और ये पूरा का पूरा लोब कौन सा है, नेगेटिव लोब, है ना। सो अगर मैं इसको A नाम दे रहा हूँ, इसको मैं B नाम दे रहा हूँ, तो A के पास में इन जनरल लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में नेगेटिव है। अगर मैं घुमाता हूँ न्यूक्लियस के बीच में, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग में अगर इसको मैं घुमाऊंगा, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन अक्षरा, बोलो सौम्या। A is going to come at the place of B and B is going to go at the place of A, right now? Yes, sir. So this is my B now and this is my A now. सो B का कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी सारा का सारा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, अंडरस्टैंडिंग। अब मैं क्या करूँगा, माई मेजर एरिया ऑफ फोकस और कंसर्न शुड बी इन बिटवीन द न्यूक्लियसेस, ये मेरा एरिया रहेगा। अब चेक करो, लेफ्ट साइड में पहले कौन सा चार्ज होता था अक्षरा, पॉजिटिव। अब कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये ऑर्बिटल सिमेट्री को मेंटेन करके रख रहे हैं क्या, no. So if the orbitals are not maintaining the symmetry, we say that these orbitals are un-G-rayed, समझ रहे हो।
So these are ungeared. अच्छा, इसमें बताओ how many nodal planes are there अक्षरा? 2. कहाँ पे 2? एक ही नोडल प्लेन है ना, 1 नोडल प्लेन, समझ रहे हो? और यहाँ पे नोडल प्लेन का वैल्यू क्या है? नोडल प्लेन इज 0 एंड द ऑर्बिटल्स आर जीरेड ऑर्बिटल्स. जीरेड का मतलब क्या है? दैट दे आर मेंटेनिंग द सिमेट्री अबाउट द न्यूक्लियस, दैट्स इट. समझ में आ रहा है? सो दीज आर मेंटेनिंग द सिमेट्री अबाउट द न्यूक्लियस. about the nucleus, understand? And these are not maintaining the symmetry about the nucleus. समझ रहे हो? Now we are going to see. Sir, there is a positive charge on A now. Sorry, repeat again, Soumya. Sir, there is positive charge on A. Okay. Sorry. There is this positive charge on it, right? So there is this positive charge, okay? Okay, so everywhere is the positive charge, right? So these are not maintaining the symmetry. Huh? Okay. So again we are going to see the same thing about the sp overlap. Tell me Akshara, sp overlap में क्या क्या होता है? Single bonds, right? So either I may have a constructive interference or I may have a destructive interference, right? The second choice is my destructive interference. तो constructive में क्या होगा अक्षरा? 3 properties follow होंगी. कौन सी? Low energy, attraction and bond will form, right? So this is my S and somewhere over here is my pica orbital या pica subshell, right? So this is my P. Let's say this is the nucleus, okay? So क्या करेंगे? Constructive के लिए I should need both the positive orbitals. What's going to happen? Let's say this is the nucleus of S subshell, this is the nucleus of P subshell. There is this attraction between the electron wave and therefore the waves will be something like this. ओके, सो ये न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज डेंसिटी ऐसे स्प्रेड हो जाएगा उसके ऊपर, है ना? तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन भी लेफ्ट में आ जाएगा इधर से, और इधर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था नेगेटिव लोब में, ये भी आ जाएगा पूरा का पूरा ये साइड में चल के. सो दिस इज़ माई फर्स्ट न्यूक्लियस एंड दिस इज़ माई सेकेंड न्यूक्लियस. पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इज बिटवीन द न्यूक्लियस देमसेल्व्स एंड हल्का सा जो नेगेटिव चार्ज है, ये हल्का सा नेगेटिव चार्ज इधर में बच रहा है. गॉट इट? डू वन थिंग, ये न्यूक्लियस में लेट मी जस्ट चेंज दिस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक्चुअली में इधर आएगा, ठीक है? दिस इज द न्यूक्लियस, अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज माय न्यूक्लियस ऑफ एस सबशेल और फर्स्ट एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेकंड एटम. अब बताओ हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर? सो मैं यहाँ पे 0, राइट? दैट मीन्स द ऑर्बिटल्स आर जीरेड और अनजीरेड. जीरेड. अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूँ मैं. सो ऑर्बिटल्स मस्ट बी जीरेड ऑर्बिटल्स. सो इफ द ऑर्बिटल्स आर जीरेड, दे विल मेंटेन द सिमेट्री और नॉट? They will maintain the symmetry. So if they are going to maintain the symmetry, let's just see. Okay, they are maintain the symmetry. Maintain symmetry. Now let's see how are these orbitals going to maintain the symmetry. Akshara, what I have to do is I have to rotate this molecule or rotate these orbitals about this axis. चलो बताओ क्या होगा जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा. सो द ऑर्बिटल विल बी लाइक दिस इटसेल्फ, और वो जो हल्का सा नेगेटिव चार्ज जो राइट में था अभी जाके इधर लेफ्ट में आ जाएगा. करेक्ट? सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर न्यूक्लियस. इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज विल बी, राइट? सो एवरीवेयर विल बी दिस पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज रहेगा हल्का सा नेगेटिव में रहेगा. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट अक्षरा, नेगेटिव चार्ज किधर था पहले? अब किधर हुआ? लेफ्ट साइड. तो सिमेट्री मेंटेन हुई क्या? बताओ. नो. तो हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जीरेड ऑर्बिटल्स है, सो सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए. तो घुमाने के बाद भी वो जो चार्जेस है वो जगह बदलनी नहीं चाहिए उनको उनकी. सो हाउ इज दिस हैपनिंग? बताओ, हाउ इज दिस हैपनिंग? See, the issue is that whenever we are going to see the symmetry, we are only and only interested in the region between the nuclei. That's it. Understanding में क्या बोल रहा हूँ? Whenever we are checking for the symmetry, whenever we are going to see if the orbitals are G-rayed or un-G-rayed, our only area of concern should be between the nucleus themselves. So मैं चेक ही नहीं करूँगा आजू बाजू न्यूक्लियस के, मैं सिर्फ एक ही जगह आँख खोल के देखूँगा सिमेट्री मैनेज हो रही है नहीं हो रही है. वो जगह कौन सी है? इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जगह.
अंडरस्टूड. सो दिस इज माय एरिया ऑफ कंसर्न. तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा अक्षरा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में कौन सा चार्ज स्प्रेड है? पॉजिटिव. अगर मैं घुमा भी दूं तो भी दोनों न्यूक्लियस के बीच में कौन सा चार्ज मेंटेन हो रहा है? Positive. So can I say that the charges have been maintained, so there is no change in the charge even if I rotate the orbitals between the nuclei themselves? समझा? Now that is how we differentiate between a G-rayed orbital and an un-G-rayed orbitals. The only issue is that majority of the students do lose their focus और वो इधर उधर देखने लग जाते हैं कि यार ये नेगेटिव चार्ज इधर में आ गया उधर में आ गया, अपने को देखना ही नहीं है उधर में. अंडरस्टैंडिंग. माई ओनली एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुड बी बिटवीन द न्यूक्लियर देमसेल्व्स. तो जब मैं चेक कर रहा हूँ कि सिमेट्री मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, किन के बीच में चेक कर रहा हूँ? न्यूक्लियस के बीच में चेक कर रहा हूँ. वाई एम आई चेकिंग बिटवीन द न्यूक्लियस इटसेल्फ? बिकॉज बॉन्ड यहीं पे बन रहा है अक्षरा. समझ रहे हो ना? दो बॉन्ड कहाँ बनेगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में, राइट? तो ये बॉन्ड का एरिया है. ये मतलब जिधर बॉन्ड बनेगा, जिधर से दो एटम्स कंबाइन होके जुड़ेंगे ना, वो यही एरिया है जो येलो कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये एरिया में बॉन्ड बन ही नहीं रहा, राइट ना? सो दैट इज़ द रीज़न. जिस एरिया में बॉन्ड बनेगा दैट एरिया शुड ओनली बी द एरिया ऑफ माई कंसर्न. और मैं उसी एरिया के अंदर चेक करूँगा इफ़ द सिमेट्री हैज़ बीन मेंटेन्ड और नॉट, या फिर मॉलिक्यूल को घुमाने के बाद में सिमेट्री मेंटेन होती है या नहीं होती है. अंडरस्टैंडिंग. नाउ द सेम स्टोरी गोज़ फॉर अनदर ऑर्बिटल्स एज वेल. इधर चेक करो. इधर क्या बोलूँगा मैं? मेरे पास में यहाँ पे चेक करो. दिस इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द सेकेंड न्यूक्लियस, राइट ना? ये दोनों न्यूक्लियस है. या पी का अगर मैं सिंगल बॉन्ड बोलूँ तो इन जनरल चेक करो. अगर मैं घुमा भी दूंगा सुमिया इस एक्सिस के अलॉन्ग में घुमा भी दूंगा तो बताओ क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस के ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, दोनों न्यूक्लियस के नीचे के साइड में नेगेटिव चार्ज ही रहेगा. गॉट इट? Yes, sir. Understanding now? So this is how the G-rayed and un-G-rayed orbitals do work. After that we are going to see the examples or the real life implications or applications of these concept, molecular orbital theory का. ठीक है. So first of all I am taking the molecule H2. ठीक है. H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन्स कंबाइन होते हैं अक्षरा. नाउ जब भी मेरे को मॉलिक्यूल दिया जाएगा ना, द ओनली इशू शुड बी आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ कह लो या डायग्राम कह लो, एनर्जी डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल्स कहते हैं उसको. ठीक है, इन जनरल. सो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर होती है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स. अंडरस्टैंडिंग. और जो वाई एक्सिस पे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स होती है और एक्स एक्सिस पे क्या होंगे? दीज आर माई ऑर्बिटल्स इटसेल्फ. ठीक है. तो ऑर्बिटल्स कौन से रहेंगे? दिस इज़ द फर्स्ट हाइड्रोजन के ऑर्बिटल एंड दिस इज़ द सेकेंड हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स बना रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अक्षरा? 1s1. सेकेंड हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोमिया? अगेन 1s1. सो कैन आई से दैट दिस इज माई 1s का सबशेल एंड दिस इज ऑल्सो माई 1s का सबशेल? अंडरस्टैंडिंग अक्षरा? 1s एंड 1s. अभी मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ बॉक्स, इट्स एक्चुअली एन ऑर्बिटल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या केस बन सकते हैं अक्षरा? या तो इधर दो केसेस बनेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर एक्सिस एनर्जी बोल रहा हूँ अक्षरा, तो जैसे जैसे मैं वाई एक्सिस पे ऊपर के डायरेक्शन में जाऊँगा एनर्जी क्या होती जाएगी सोमिया? इंक्रीज. और जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊँगा द एनर्जी क्या होगा? वेरी गुड, डिक्रीज होगी. तो अब समझो जरा, अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना रहा अक्षरा, सो आफ्टर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एनर्जी ज़्यादा होती है या कम होती है? कम होती है. मिनिमम एनर्जी ना, देयर आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना, 3 प्रॉपर्टीज: मिनिमम एनर्जी, अट्रैक्शन एंड बॉन्डिंग, राइट? तो मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी बनेगा कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल्स का, उसका एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से भी कम होगा. तो मान के चलो ये एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का लेवल हो गया और इस लेवल पे एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं EA नाम दे रहा हूँ. ठीक है. अब जो नया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा ना, वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे की एनर्जी या कम एनर्जी पे होगा. सो वाई एक्सिस पे मैं नीचे आऊँगा, राइट अक्षरा? Yes, sir. So this is how the constructive interference works. So this is my constructive interference के बाद वाला ऑर्बिटल. तो अगर इधर सिग्मा बॉन्ड 1s के बीच में देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, राइट ना अक्षरा? अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ. सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर इज जस्ट अ सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल और ये बनेगा मेरा सिग्मा बॉन्ड का 1s ऑर्बिटल. एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी एज वेल ना अक्षरा, की पाइप वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की, राइट? सो मैं तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एनर्जी कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? ज़्यादा. सो इफ द एनर्जी इज मोर, कैन आई ड्रॉ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऑर्बिटल्स इन द अपर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द हायर एनर्जी लेवल? Yes, sir.
अंडरस्टैंडिंग। तो इसको नाम, अगर हम सिग्मा दे रहे हैं कंस्ट्रक्टिव को, तो डिस्ट्रक्टिव को क्या नाम देते हैं हम सोमिया? सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 1s। अंडरस्टैंडिंग। तो समझो जरा, तो अब मेरे पास में ना थोड़ा सा मैं इसको लेवल में से इनको हटाता हूँ, ठीक है? चलो, हाँ अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सोमिया, द क्वेश्चन इज दैट 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 1s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इनको मिलके बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो सिग्मा बनाओ या सिग्मा स्टार बनाओ। तो जैसे ही सिग्मा बन गया, व्हाट डू यू थिंक दिस इलेक्ट्रॉन विल गो? वेयर डू यू थिंक दिस इलेक्ट्रॉन गो? किधर जाएंगे? सिग्मा में जाएंगे या सिग्मा स्टार में जाएंगे? सिग्मा वाई? बिकॉज ऑफ लो एनर्जी। लो एनर्जी। तो अक्षरा समझो, इलेक्ट्रॉन के पास में दोनों, कितने इलेक्ट्रॉन्स अक्षरा टोटल? मेरे पास में दोनों, दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब दोनों इलेक्ट्रॉन के पास में चॉइस है। क्या चॉइस है? कि या तो देखो भाई, तुम दो इलेक्ट्रॉन्स हो, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देख भाई, तेरे पास में तीन ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है? या तो तू ये इलेक्ट्रॉन ये शेल के अंदर जाके स्टेबल हो जा, या फिर तुम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर के शेल में चले जाओ, या फिर तुम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे के शेल में चले जाओ, इधर में सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s के अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन को तीन चॉइसेस जब मैं दे रहा हूँ ना, सो इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि यार ज़्यादा स्टेबिलिटी किधर है, राइट ना? देखो, किसी भी सिस्टम को एनर्जी पसंद नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग? कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, उसको मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट स्टेबिलिटी वाला पॉइंट। स्टेबल एनर्जी लेवल होता है मिनिमम एनर्जी लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग अक्षरा? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे? मिनिमम एनर्जी लेवल पे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा जंप करके, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा। और जैसे ही ये दोनों इधर आ गए, तो चेक करो ये कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना अक्षरा? यस सर। अब बात खत्म। सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लुक्स लाइक। समझ रहे हो? सो क्या होगा यहाँ पे? आई जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम, इसका 1s सबशेल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द सेकेंड हाइड्रोजन का एटम, ये भी इसका 1s सबशेल है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से दीज आर द न्यूक्लियस देमसेल्व्स। तो अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एज अ वेव। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एज अ वेव। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन को बोल रहा हूँ यू हैव टू मेक अ बॉन्ड, एंड तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो तुम कैसा इंटरफेरेंस करोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बोलता है इधर का, चल यार हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके देखते हैं। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? देख भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर तो सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक प्रॉब्लम आएगा। क्या? कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, या ज़्यादा एनर्जी, अपने को ज़्यादा एनर्जी लेवल में रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी लेवल दोनों इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं है, बिकॉज वो स्टेबल पॉइंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? दैट इज़ द रीज़न वाई ये इलेक्ट्रॉन बोलता है अरे हाँ यार बराबर कह रहा है, अगर डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी पे रहना पड़ेगा, और रिपल्शन भी होगा हमारे बीच में। और अगर रिपल्शन हो ही रहा है, बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं है। और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंटी बॉन्डिंग में होता है। तो इन दोनों के पास में चॉइस है, इस इलेक्ट्रॉन के पास में, अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहने का। सो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास में चॉइस है, तो हर इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही रहना चाहेगा अक्षरा। समझ रहे हो? सो ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा लाइक दिस, एंड आफ्टर सम टाइम द बॉन्ड विल फॉर्म। और ये बॉन्ड कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है, पहला इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिटल का नाम था सिग्मा 1s, राइट? सो हाइड्रोजन का जो शेप दिखता है ना, एक्चुअल में हाइड्रोजन दिखने में ऐसा दिखता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब तक जो हमने देखा था सिग्मा, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन बॉन्ड का कैसा होता था सोमिया? दिस इज़ 1s, दिस इज़ ऑल्सो 1s। ये दोनों पास में आते हैं, ओवरलैप करके बॉन्ड्स बनाते हैं, राइट ना? सो हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज़ 1s, दिस इज़ 1s, एंड दिस इज ss ओवरलैप। एंड हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लुक्स लाइक दिस। समझ रहे हो? यस सर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ज़रूरत क्यों पड़ा? बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स द मॉलिक्यूल इन अ वेरी डिटेल्ड वे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम उतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा सकते, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ जीरेड एंड अनजीरेड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सी, इसको यहाँ से ऐसे नहीं घुमाएंगे, नोडल प्लेन के अलॉन्ग में घुमाएंगे यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होगा अक्षरा? इधर चेक करो, अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग में घुमा रहा हूँ तो कैसे घूमेगा अक्षर? आफ्टर सम टाइम कैसे दिखेगा शेप इसका? ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ठीक है।
नेगेटिव। और नीचे कौन सा चार्ज आएगा सौम्या? पॉजिटिव। तो चार्जेस एक्सचेंज हो गए ना, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? सिमेट्री मेंटेन हो रही है क्या इधर में? नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रही है तो ये कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे? अनजीरेड ऑर्बिटल्स, राइट, अनजीरेड ऑर्बिटल्स। तो या फिर इधर नोडल प्लेन का वैल्यू क्या है? n इक्वल्स टू 1। तो ये अगर नोडल प्लेन ऑड नंबर हुआ तो ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी अनजीरेड ऑर्बिटल्स, राइट? हाँ ना, बोलो। अब इधर भी मैं क्या करूँगा, देखो, जब भी तुम मॉलिक्यूल को घुमाओगे या जब भी ऑर्बिटल्स को घुमाओगे, दो न्यूक्लियस की लाइन ज्वाइन करो सबसे पहले और उसी लाइन के अलॉन्ग में घुमाओ। तो मैंने दो न्यूक्लियस की लाइन इधर ज्वाइन कर ली और इस लाइन के अलॉन्ग में मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक करो क्या होगा आफ्टर सम टाइम। इन दोनों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। आफ्टर सम टाइम इन दोनों न्यूक्लियस के ऊपर वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा, बराबर ना? टोटल चार्जेस कौन से? पॉजिटिव नेगेटिव। इधर भी कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? सो द सिमेट्री इज ऑल्सो मेंटेन ओवर हियर। चलो ठीक है, एनीवेज। सो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इफ़ आई हैव टू टेल अबाउट द H2 का मॉलिक्यूल, H2 के अंदर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अक्षरा, सिग्मा 1s। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ से वी हैव लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल। अब तक तो हमने एटम्स का पढ़ा था, अब मॉलिक्यूल्स का भी पढ़ रहे हैं, राइट? नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, लेट्स से, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है? If I make the same hydrogen, या in general if I have to make about the same bond between helium and helium, ठीक है? You know helium is a noble gas, Soumya. What do you mean by noble gas, Akshara? You don't know what is a noble gas? देखो, नोबल गैस इज़ नथिंग बट इनर्ट गैसेस होते हैं। वो बॉन्ड्स बनाते नहीं है इन जनरल, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। पता है तुमको? ये नहीं पता है? अच्छा ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, याद रखो। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑल ऑफ दिस गैसेस दे डू नॉट मेक बॉन्ड्स विद एनीवन। हाँ, इन जनरल नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर्स पे बॉन्ड नहीं बनाते। उनको अगर बॉन्ड बना रहा तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस देने का ज़रूरत है, बहुत बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाके वो लोग बॉन्ड बनाते हैं। या इन जनरल हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, ये जितने भी नोबल गैसेस हैं ना, दे डोंट मेक द बॉन्ड्स। याद रखो, दे डोंट जस्ट रिएक्ट विथ एनी मॉलिक्यूल, एनी एटम। तो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे, समझने की कोशिश करो अभी। यहाँ हो क्या रहा है अक्षरा, ध्यान से सुनो। अगर मैं हीलियम की बात करूँ, He2 नेवर एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? इसका रीज़न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है अपने को। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी He2 भी एग्जिस्ट करता है, बराबर ना सोम्या? क्या करना है मेरे को? हाइड्रोजन, हीलियम लेना है। हीलियम के अंदर 1s का सबशेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर भी हीलियम है, इसके अंदर भी 1s सबशेल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पास में आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप के बाद में क्या होना चाहिए? ये 1s2, ये 1s2 हीलियम का, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट? इन जनरल देखो यार, एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बनेगा नहीं बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलेंगे हम कि यार देखो, हीलियम के पास में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फालतू में बॉन्ड क्यों बनाएगा, यही बोलते हैं ना, है ना? बोलो। बट इन डेप्थ कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सारा का सारा इन डेप्थ अपने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है। तो अगर हीलियम देखना रहा अक्षर है मेरे को, तो हीलियम के अंदर मैं क्या करूँगा, चेक करो। हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 1s सबशेल है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? पहला हीलियम। दूसरा भी हीलियम के अंदर 1s सबशेल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। सो हाउ द एनर्जी डायग्राम विल लुक लाइक, दिस इज़ वाई एक्सिस पे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे मेरे आएंगे ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ 1s2 का ऑर्बिटल, दिस इज़ ऑल्सो 1s2 का ऑर्बिटल। ऑलमोस्ट एनर्जी इन दोनों का सेम रहेगा, है ना? अब होगा क्या, चेक करो। ये मेरा 1s2 का ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा 1s2 का ऑर्बिटल हो गया। इसके पास में 2 चांसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नीचे एनर्जी रहेगा, लोअर एनर्जी पे रहेंगे। सेकेंड चॉइस इज़ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों चॉइसेस पॉसिबल हैं। तो इनके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ी बनाना है, राइट ना? देखो, ये दोनों ऑर्बिटल ऊपर जो बने हैं, ऊपर सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। एक कंडीशन इनके अंदर मैंडेटरी है सोम्या, अक्षरा, कि इन दोनों के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में नहीं होंगे, सिग्मा स्टार 1s में भी नहीं होंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास में चॉइसेस अवेलेबल है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, लेट्स से पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया नीचे,
और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाला हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो गया। ये बोल रहे हैं कि देख भाई, अपने को क्या करना है, अपने को बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास में दो पॉसिबल चॉइसेस हैं, पहला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस दोनों केसेस में क्या हो रहा है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे रहेंगे तो हमारे बीच में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, रिपल्शन रहेगा हम दोनों के बीच में, और अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो हम दोनों स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो दोनों क्या चूज़ करेंगे, ऑब्वियसली ये दोनों लोअर एनर्जी पे रहना पसंद करेंगे। तो इनके पास में चॉइस अभी अवेलेबल है। तो हो क्या रहा है, थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इधर आके बैठ गया नीचे का स्पिन, और यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और नीचे आके बैठ गया ये वाला स्पिन, राइट। तो जो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन था, इनके पास में चॉइस थी अवेलेबल, तो इन्होंने नीचे वाली एनर्जी या बेटर ऑप्शन को चूज़ किया। अब जो बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्या इनके पास में कोई चॉइस बची है? नो सर। नो। कहाँ, इनके पास कोई चॉइस नहीं बची, एक ही ऑप्शन बाकी है इनके पास में, सिग्मा स्टार वाला। समझ रहे हो? तो ये क्या करेंगे, मुंह बंद करके मजबूरी में जाके इधर से उठेंगे और सिग्मा स्टार 1s में जाके बैठ जाएंगे। अब होगा क्या, देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन कंप्लेंट करना, गुस्सा हो जाएंगे, यार देख यार ऐसा ऐसा है, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम भी इलेक्ट्रॉन है, सेम एनर्जी पे थे, बराबर ना। मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन का नाम है ए, ये इलेक्ट्रॉन का नाम है बी, ये इलेक्ट्रॉन का नाम है सी और ये इलेक्ट्रॉन का नाम है डी। तो शुरू में ए और सी जो है, या इन जनरल ए और सी, ये दोनों नहीं, ए और डी बोल सकते हैं, ठीक है इसको। तो ए वाला अपर स्पिन का हो गया और ये डी वाला लोअर स्पिन का हो गया। ए और डी तो सेम ऑर्बिटल के अंदर थे, राइट, अक्षरा 1s के अंदर। तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा देख भाई मैं तो सेटल हो गया हूँ, मैं तो लोअर एनर्जी पे जाके फिक्स हो गया हूँ, ए हंसने लग जाएगा, राइट। अब डी क्या बोलेगा, यार देख शुरू में हम तो दोनों सेम एनर्जी लेवल पे थे, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, ए को अच्छी खासी ऑर्बिटल मिल गई। तो डी क्या करेगा, चुप नहीं बैठेगा, अंडरस्टैंडिंग। ये बोलेगा यार मेरे साथ का इलेक्ट्रॉन है, मेरे को मैक्सिमम एनर्जी मिल गई, मेरा लॉस हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन चुप नहीं बैठेंगे, इसके अंदर के दो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये जो बना हुआ बॉन्ड है ए और बी का, ये बने हुए बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे और तोड़ भी देंगे, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इधर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन दूसरे दो इलेक्ट्रॉन को जाके तोड़ेंगे। तो अक्षरा, तो ये होगा क्या, इनके बीच में ये जो बना बनाया बॉन्ड था दो इलेक्ट्रॉन्स का, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ये दो इलेक्ट्रॉन ने तोड़ दिया, अंडरस्टैंडिंग, बोलो। यस सर। सो दिस इज हाउ, दैट इज द रीज़न वाई इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड के अगेंस्ट में है ये। सो दीज आर नथिंग बट द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और ये जो लोअर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या सिग्मा बॉन्ड रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। समझ रहे हो? अब एक बात याद रखो, जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना अक्षरा, तो कंप्लीट बॉन्ड किसको बोलेंगे, कंप्लीट या वन बॉन्ड किसको बोलेंगे, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इन जनरल याद रखो मेरे पास में, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो मेरे को एक बात बताओ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट H2 के बीच में कितने बॉन्ड्स है अक्षरा? वन, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। तो अब याद रखो, एक रूल बता रहा हूँ मैं तुमको नंबर ऑफ या बॉन्ड्स याद रखने का। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मस्ट या कंपल्सरी कह लो, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो एक बॉन्ड माना जाएगा फॉर वन बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए, समझा। तो अब मेरे को एक बात बताओ अक्षरा, किसी के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड्स कितने होंगे? 2 बॉन्ड्स, राइट सौम्या। 2 बॉन्ड। और किसी के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितने बॉन्ड्स होंगे? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड्स। और अगर किसी के अंदर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितना बॉन्ड होगा? 2 बॉन्ड। 0 बॉन्ड। 0 बॉन्ड कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉन्ड हो रहा है? 1 बॉन्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बॉन्ड होगा? हाफ बॉन्ड। ज़बरदस्त। सो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने को हाफ बॉन्ड का भी इंट्रोडक्शन देती है। अब एग्जांपल सुनना हाफ बॉन्ड का, ठीक है। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ हीलियम एंड मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो हीलियम एंड हाइड्रोजन के बीच में मेरे को बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। सो हीलियम एंड हाइड्रोजन के बीच में मैं एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एटम हीलियम एंड दिस इज़ माय सेकंड एटम हाइड्रोजन। हीलियम की अगर बात करूँ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज़ 1s2। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज़ 1s1। तो हीलियम के अंदर क्या होगा, ये मेरा 1s का ऑर्बिटल रहेगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट अक्षरा।
एंड सिमिलरली हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन का भी ये 1s ऑर्बिटल रहेगा और इसके अंदर सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, इन दोनों को बॉन्ड बनाना है। मान के चलो हम ज़बरदस्ती, वैसे तो बनाएंगे नहीं बॉन्ड, हाँ, लेकिन मान के चलो हम बहुत ज़बरदस्ती करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करा रहे हैं, तो इनके पास में दो पॉसिबल रास्ते हैं। या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर ले और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक बॉन्ड बनाए, ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल रहेगा। या फिर इनके पास में दूसरा ऑप्शन है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लें और दूसरा बॉन्ड बना लें, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार वाला ऑर्बिटल, राइट। अब वही मैं बोल रहा हूँ, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन का नाम है ए, ये इलेक्ट्रॉन का नाम है बी और ये इलेक्ट्रॉन का नाम है सी। अब होगा क्या, बी और सी को चांस मिलेगा और बी और सी डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे कि भाई अपने को जाना किधर है। सो किधर जाना पसंद करेंगे अक्षर आई, बी और सी? कंस्ट्रक्टिव में। तो इधर से निकलेंगे और निकल के दोनों भी जाके बैठ जाएंगे कंस्ट्रक्टिव में। अब ए के पास में कोई चॉइस बची क्या अक्षरा? तो ए को किधर जाना पड़ेगा मजबूरी में? डिस्ट्रक्टिव में। तो अब ए जैसे ही डिस्ट्रक्टिव में गया, अब वो भी गुस्सा होने लग गया कि यार मैं तो मेरे और उसके बीच में कोई डिफरेंस था ही नहीं, हम दोनों पहले एक ही घर में थे, उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलता था, मेरे को भी सेम ट्रीटमेंट मिलता था, बट अब वो जाके अच्छी जगह पे बैठ गया, मेरे को इधर हाई एनर्जी पे बैठा दिया है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, ये भाई ये बदला लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये बहुत गुस्सा है अभी, तो ये अकेला है, ठीक है। तो इधर का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये तो खुद जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाएगा। तो जो पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में था, ये बॉन्ड के अगेंस्ट में है, तो इसकी ताकत, इसकी औकात सिर्फ एक की है, तो ये जाते हुए भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। दो में से एक इलेक्ट्रॉन को ये लेके मर गया, खुद भी मर गया, इलेक्ट्रॉन को भी मार दिया, राइट। अगर दो होते तो दो के दो को मार देते, बराबर ना, जैसे ऊपर मार रहे थे, चेक करो यहाँ पे, ये दोनों हैं, दोनों गुस्से में हैं, एक जाके इसको मार रहा है और ये जाके इसको मार रहा है, तो दोनों भी मर रहे हैं, चारों के चारों मर जा रहे हैं, राइट, कुछ भी नहीं बच रहा। अंडरस्टैंडिंग है ना, बोलो। तो अब इधर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया अक्षरा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अक्षरा यहाँ पे? 1। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे? हाफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर करो, HEH मतलब हीलियम हाइड्राइड या हीलियम हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल, इसके अंदर सिर्फ हाफ बॉन्ड देखने मिलेगा अपने को, समझ रहे हो?